Assalamu alaikum and welcome to the fifth lecture of consumer behavior. In the previous lectures, we went through the concept of segmentation. Okay, किस तरह से segmentizing your market is basically an extremely preliminary and an important task. While we tend to classify our consumers, क्योंकि हर consumer की preference and need के मुताबिक हमने उसको serve करना है. So whenever we are serving a set of consumers, obviously it is somehow impossible to reach at every aspect and to touch every kind of domain. क्योंकि हमारे पास larger range, larger cycle और larger किस्म के um, consumer base हमारे पास होती है, and at times it can get extremely confusing and not only confusing लेकिन extremely worrisome for the organization कि वो properly हो सकता है कभी touch भी ना कर पाए properly अपने उन consumer base को. लिहाजा the best thing is that we should be segmentizing our consumers. उससे ना सिर्फ हम नीड्स एंड वांट्स का पता लग रहा होता है, बल्कि हम अपनी कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को जब जान लेते हैं प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली हम फिर उसको प्रॉपर तरीके से उनको सर्व भी कर पाते हैं according to their nature, according to their consumption habits as well. Similarly, because brands need to keep working on how they can um, maximize their customer base, maximize their share, maximize their profit, and maximize their sales. तो उसमें कहीं ना कहीं it is extremely important कि वो अपनी प्रोडक्ट और अपने ब्रांड की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनको ऐड ऑन करते रहें. जैसे अगर कभी उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की तो उसके कुछ टाइम पीरियड बाद दे नीड टू बी just to be in the market and to be a part of the consumer's memory, they need to keep on launching products as well. क्योंकि कंज्यूमर की भी नीड कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, और आजकल के डिजिटाइज्ड किस्म के एरा में कंज्यूमर वैसे ही बहुत इवन मोर देन ही शुड बी अवेयर, उससे भी ज़्यादा अवेयर है. और इस किस्म की अवेयरनेस इज बेसिकली a source of changing needs that they have. Similarly, जब changing needs हैं तो we would as you can say as brands, ज़रूरत इस बात की भी होगी कि वहाँ आप न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करें. So you have to expand your market, you have to hence expand your market share, you have to expand your your portfolio as well. क्योंकि our customer won't ever be satisfied unless until he is being provided by the proper kind of products, and also the major and the proper kind of things that are basically his needs and wants. तो मार्केट सेगमेंटेशन एक तो हम इसलिए भी कर रहे होते हैं. अब मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस होते हैं, या थिंग्स दैट आर बेनिफिटिंग द फर्म बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेगमेंटाइजिंग process, and then the things that are the acting as an advantage to the consumer, जो कि consumer के point of view से फायदा भी फराहम करें. तो दोनों perspectives हैं, we would be studying them one by one. First of all, obviously increase in sales volume कुछ बड़ी पैटर्न, बड़ी जेनेरिक सी बातें हैं इसके अंदर. वी वुड बी हैविंग एन ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ इट कि जब मार्केट सेगमेंटाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं इन सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस कि इनको इस तरह से सर्व करना है, मैंने सेगमेंट बी को मैंने इस तरह से सर्व करना है, सेगमेंट सी को मैंने इस तरह से सर्व करना है. तो वो हमारे पास प्रॉपर उनकी क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं. सो हम उसी तरह से जब एक प्रॉपर किस्म के सेगमेंट को सर्व कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम ज़्यादा उनके परसेप्शन और उनके साथ अलाइंड होके ज़्यादा करीबी तरीके से चल रहे हैं उनके साथ. सो दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू गिव एन इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम. इट इज गोइंग टू हेल्प टू प्रिपेयर इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान्स. It would be able to take decisions as well कि आप जब segmentize कर रहे हैं तो obviously you are working on things that require major kind of
decisional kind of tasks as well. Similarly, आप मज़ीद प्रॉपर्ली अपनी कंज्यूमर की नीड को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. And in a world that is just run by competition within the market industry, तो वहाँ पर भी आपका survival can be extremely better as well. um, when we're talking about companies or organizations, obviously they have resources. तो उन resources का best possible use जो है वो segmentizing करके ही कोई भी company achieve कर सकती है, because that's resource being used for the company's own better future की बेहतरी के लिए उसकी use हो रहा है. You would be achieving marketing goals. Specialized marketing है जहाँ पर you are targeting a specialized group of individuals having some special kind of needs. तो जाहिर है आप उससे competitive advantage भी gain कर रहे हैं. You're creating new things, newness in your products and brands. तो ये सारी चीजें आपकी market segmentation के ही advantages के अंदर हम list down कर सकते हैं. Similarly, when we talk about advantages that are seen with the consumers, कि जितना भी customer oriented product होगी उतना ही consumer के लिए ये एक plus point है उसका. Obviously, if I purchase something from brand XYZ, और मैं उसको उसके usage के बाद मैं समझती हूँ कि this is um, tailored and it's made up to my expectations and up to my needs and wants. So obviously, I know that that company is surrounding itself um, all over the company's needs and wants. तो वो जितनी कस्टमर ओरिएंटेड होगी कंपनी उतना ही उसका उसके पास सेल्स आएंगी, उसके पास मार्केट शेयर भी होगा. और कस्टमर को कंज्यूमर को जो एडवांटेज है उसमें ऑब्वियसली एक किस्म का एडवांटेज ये भी है कि यू वुड बी गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. अब आप जितनी सेगमेंटाइजिंग करेंगे, सेगमेंटाइज जब हम कर रहे होते हैं यूजुअली हम बहुत सारे डिफरेंट किस्म की नेचर्ड चीज़ों में से सिमिलर नेचर्ड चीज़ों को एक-एक सबसेट के अंदर डाल रहे होते हैं. तो व्हेनेवर वी देन क्लासिफाई समथिंग और सेगमेंटाइज समथिंग, और वो एक ही तरह की चीज़ों को जब हम इकट्ठे एक जगह पे क्लासिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हम मज़ीद इन डेप्थ होके स्टडी करते हैं चीज़ों को, एंड व्हिच मेक्स अस कस्टमर ओरिएंटेड. सिमिलरली बेनिफिट्स की यहाँ उन्होंने क्यों बात की कि सेगमेंटाइजिंग करने से बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन यू आर क्लासिफाइंग योर प्रोडक्ट्स, when you're classifying, sorry, not your products, when you're classifying your market, or when you're segmentizing your market, तो उसमें जब आपको similar natured segment कोई भी बनाएँगे, तो उसमें obviously you would be um, configuring out and spending the same kind of source and putting the same kind of resource in the same classified group, जिसकी वजह से आपको एक हायर एंड में उससे रेवेन्यू जनरेशन हो रही है. जब आपको हायर एंड से रेवेन्यू जनरेशन होगी, तो ऑब्वियसली आपके पास एक bridge develop हो जाता है that you can give up offerings to that segment as well. फिर दूसरी चीज़ कि जब हम segmentize कर रहे हैं, तो basically हम कर ही इसलिए रहे हैं कि हम position कर सकें अपने mind में consumers को. तो unless और until मैं उस ब्रांड को, अपने उस प्रोडक्ट को memorable enough नहीं बनाऊंगी, I won't be able to stay in the market. I won't be able to stay in the minds of that those consumers. So इसीलिए segmentize जो मैं कर रही हूँ, तो segmentize usually मैं उसी मार्केट को ही करूँगी जिसके अंदर मैं नई एंटर होना चाहती हूँ. हम अपनी ऑलरेडी सर्व्ड मार्केट को सेगमेंटाइज कम ही कर रहे होते हैं, लेकिन सेगमेंटाइजिंग जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो उन मार्केट्स की बात कर रहे हैं जो अनटच्ड हैं हमारे ब्रांड से. सो व्हेनेवर आई वुड बी टचिंग सच अ मार्केट, तो वहाँ पर मुझे पोजीशन करने के लिए उनको इस किस्म की बेनिफिट्स एंड ऑफर्स एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम्स देना लाजमी होगा, सो दैट कैन एक्ट एज एन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स एज वेल.
Now, coming to some levels of मार्केट सेगमेंटेशन, जिसमें से सबसे पहले है सेगमेंट मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड इंडिविजुअल मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव बीन स्टडीइंग दिस अप्रोच कि हम सेगमेंटाइजेशन कैसे करते हैं। तो वही बात कि जब हम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को किसी एक खास कॉमन किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन किस्म की प्रेफरेंसेस के ऊपर हम ग्रुप कर लेते हैं, तो दैट इज वी कैन से कि हम उनको मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली, व्हेन एवर आई वुड बी टॉकिंग अबाउट नीश मार्केटिंग, तो नीश मार्केटिंग में the one thing that can totally help you out in understanding niche marketing is that आप एक स्पेशलाइज्ड किस्म का सेगमेंट बनाते हैं किसी स्पेशलाइज्ड किस्म की मार्केट को सर्व करने के लिए, जिसमें उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत यूनिक होंगी। um, जैसे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊँ, तो यू कैन सी दिस ad which I took from a brand that is named as Lefties, and it is basically um, an online ad of an online store, जहाँ पर उन लोगों के लिए चीजें मिलती हैं, यू कैन बाय दीज थिंग्स, जो लेफ्ट हैंडेड है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, और हम जो हमारा बिल्कुल जो डोमिनेंट हैंड होता है उससे जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, या इफ वी आर बेकिंग तो हम वो बेकिंग ग्लव पहन रहे हैं, या अगर हम वो स्पून उस एक खास किस्म के पोस्चर से पकड़ रहे हैं अपने राइट हैंड से, क्योंकि अमूमन तो हम राइट हैंड से काम करते हैं। So there are people who use left hand as their dominant working hand. तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक ऑनलाइन सर्विस, एक ऑनलाइन स्टोर बनाया विद द नेम ऑफ लेफ्टीज। अब ये जो है दैट इज नीश मार्केटिंग, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ पीपल को, जिनकी एक यूनिक किस्म की नीड है, उनको हेल्प आउट कर रहा है या उनकी बात कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ niche marketing. I would repeat it again, जहाँ पर मैं किसी किस्म की यूनिक मार्केट को टारगेट कर रही हूँ। Similarly, where I am working for preferences जो कि आम तौर पर मुझे नजर नहीं आएंगी मार्केट में के। Local marketing की whenever I would explain local marketing को हम in easier terms समझने के लिए location based approach से भी जानते हैं। कि for example, इस किस्म की कोई शॉप, कोई पेट्रोमार्ट, कोई छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर that is found across the neighborhood or in your city, that is just a small local business जो कि एक उन सेट ऑफ कस्टमर्स को हेल्प आउट कर रहा है या उनकी नीड्स पूरी कर रहा है जो उस लोकेलिटी में बैठे हैं, और उनके लिए ही बना गया है। दैट इज लोकल मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहां पर यू फाइंड योर ओन एक छोटा सा पेट्रोमार्ट आपको पता है, वहां पर एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर पता है, उसी कॉलोनी का एक छोटा सा कोई टेलर भी है, वहां पर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की भी सहूलत दी गई है। सो दैट इज लोकल मार्केटिंग। दैट प्लेस इज बेसिकली देयर फॉर इट्स ओन लोकेलिटी जो वहां पर रह रही होती है। सिमिलरली, आई वुड रिपीट दिस अगेन कि हम लोकल मार्केटिंग को कई दफा मार्केटिंग टर्म्स में लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग भी कहते हैं। Individual marketing, या in other terms, that is personalized marketing as well. Basically वो is a type of segmentation जहाँ पे हम बिल्कुल one to one होके अपनी प्रोडक्ट और अपनी ब्रांड को मार्केट कर रहे हैं। यहाँ पर यूजुअली ये की कैसे जाती है कि हम
बहुत ज़्यादा जैसे बिग डाटा एंड नीलसन किस्म की जो कंपनीज़ हैं, उनसे कंज़्यूमर डाटा लेके आपकी उस कंज़्यूमर की परचेज़िंग पावर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि हम असेस कर रहे होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ परचेज़िंग पैटर्न्स डू दे हैव। उसके मुताबिक वो उन इंडिविजुअल्स को हिट करते हैं जो हू कैन बी प्रोस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो कि उस किस्म की मार्केट के, उस किस्म के ब्रांड के प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं। व्हिच इफ आई जस्ट मेक इट अ लिटिल मोर ईज़ियर कि फॉर एग्ज़ाम्पल extremely high class brands like Mercedes, BMW, Gucci, इस किस्म के जितने ब्रांड्स हैं ये इंडिविजुअलाइज्ड मार्केटिंग करते हैं, ये पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करते हैं। कैसे? बिकॉज दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक सेट ऑफ कंज्यूमर्स जिनका उनको अंदाजा है उनकी परचेजिंग पावर का, तभी वो थोड़ा पर्सनलाइज्ड होके उन्हीं को ही वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली इंडिविजुअल मार्केटिंग की एक बहुत बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि whenever we see a global kind of a high class brand and if it has to launch for example अपने garments और apparels में उन्होंने कोई न्यू विंटर कलेक्शन लॉन्च की है, तो अभी लॉन्च होने से पहले um, वो इंडिविजुअल मार्केटिंग की बेसिस पे या पर्सनलाइज मार्केटिंग की बेसिस पे अपने कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को जिनका उनको पता है कि वो इतना हाई कॉस्ट किस्म की लग्जरी आइटम्स को परचेज करने को तैयार हो जाएंगे, वो उनको पहले उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, देन दे इंट्रोड्यूस इट टू द वर्ल्ड और टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो ये आपकी इंडिविजुअल मार्केटिंग है जहाँ पर मैं एक खास क्लास को बेसिकली हिट कर रही हूँ अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए। um, we just saw this example of niche marketing. Coming towards target marketing, जो कि आपकी segmentize करने के बाद जब आप classify कर लेते हैं किसी भी किस्म की segment को उनके एक तरह के उनके same किस्म के similar preferences, tastes and likes and dislikes के ऊपर, तो you basically then pick up that segment and then you start targeting it. टारगेटिंग इट मीन्स कि अब आपने अपनी सारी मार्केटिंग एफर्ट्स, अपनी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज, अपनी सारी प्लेसमेंट की एक्टिविटीज, अपनी सारी अवेयरनेस एड कैंपेन्स, अपनी सारी की सारी मार्केटिंग एफर्ट्स आपने उसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करनी है बेसिकली। क्योंकि आप उस एक सेगमेंट को एक तो जान चुके हैं कि उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, हाउ डू दे पे, हाउ डू दे लाइक थिंग्स, हाउ डू दे डिसलाइक थिंग्स, उनकी नीड्स एंड वांट्स एंड उनके डिजायर्स क्या हैं। तो इट बिकम्स अ लिटिल, नॉट अ लिटिल, but in fact it becomes extremely easier to um, target that specific kind of set of people. तो टारगेट मार्केटिंग में आप उस सेगमेंट को क्लासिफाई कर को टारगेट कर रहे हैं जो आपने अपने सेगमेंटाइजिंग के प्रोसेस के अंदर से निकाला। um, Similarly, for example, यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि Mercedes targets high status consumers, Honda targets sensitive customers. So that is basically कि हम किस तरह से अपने segments को लेके चल रहे हैं. Then we have to see that how we would be working upon them as well. Um, Approaches हैं दो किस्म की जो हम when we are working on a target market, तो उसमें हम देखते हैं to select one of them which to serve. First is a total market approach and the second one is a concentration approach. Total market approach में basically जो भी कंपनी XYZ whatever corporation it is, वो एक सिंगल मार्केटिंग प्लान बनाती है और वो उस सारी मार्केट के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। Basically यहाँ पर we see market as one unanimous kind of a subject, कि हमने उसको इस कदर सिमिलर तौर पे क्लासिफाई कर लिया कि वी थिंक ऑफ इट एज वन थिंग और वन काइंड ऑफ अप्रोच, हैविंग ऑब्वियसली द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। तो तभी हम अपने मार्केटिंग मिक्स को या अपने मार्केटिंग प्लान को इस तरह डेवलप करते हैं कि हम उस पूरी मार्केट के ऊपर उसको
इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कंसंट्रेशन अप्रोच में basically in this organization approach, a single market segment through a single marketing mix, the total market consists of many segments, but this will select one segment as a target market. कि हम उस सेगमेंट में से एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी वुड सेलेक्ट सम काइंड ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स और अ मार्केटिंग प्लान टू इम्प्लीमेंट ऑन इट बिकॉज बहुत सारे हमारी मार्केट के सेगमेंट्स हैं उसमें से हमने एक सेगमेंट उठाया और अब हमने उसको टारगेट करना है अब वो हमारे ऊपर है कि हमने उसको टोटल मार्केट अप्रोच के ऊपर लेना है या हमने उसको कंसंट्रेटेड अप्रोच पे के ऊपर लेके चलना है because when companies are segmentizing their market वहां पर um, उन्होंने अपना मार्केटिंग प्लान नहीं देखना until unless um, they do not basically come to know that market. तो whenever they are doing targeting उस segment को निकाल के जब उसको target कर रहे होते हैं तो उन्होंने उसको उस तरह से भी लेके चलना है कि वो मार्केट होमोजीनियस होगी तो वो जितनी भी उनकी अप्रोच होगी उसके इर्द गिर्द मार्केटिंग प्लान की वो ऑब्वियसली वो कंसंट्रेटेड होगी um, और उनकी वो जितनी भी मार्केटिंग एफर्ट्स होंगी वो कंसंट्रेटेड होंगी टुवर्ड्स अ स्मॉलर सेगमेंट ऑफ अ मार्केट तो वो थोड़े छोटे छोटे सेगमेंट्स उठा के उनको एज वन सेगमेंट टारगेट करना शुरू करेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं द कंसंट्रेटेड अप्रोच इज मच इजियर एज कम्पेयर टू द टोटल मार्केट अप्रोच बिकॉज टोटल मार्केट अप्रोच में फिर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी रह जाने के चांसेस होते हैं that is enough for today's lecture. Please go through all of the concepts that we went through. Why market segmentation can be a good or benefiting thing for the firm as well as to the consumers. Similarly, go through the 4 levels of market segmentation and the topic of targeting that we started, because all of these things are extremely and highly vital to study consumer behavior. Because unless until हम उसकी कोर को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि हम करते क्यों हैं या करते कैसे हैं we won't be able to grasp the full meaning and full kind of its essence. Please go through the lecture and you can let me know for any queries. Thank you so much.